Okay, guys, so let's get started on this demo session for Cisco ACI DC ACI 300/620. Okay, I am Manish. I will be the trainer for the course. Can you guys hear me? Can you just acknowledge? Yes. Yes, we can hear you. Yeah, fine. Thanks for confirmation. Okay, so basically, I'm going to tell you like how I'm going to give you the demo on this. Like I'm going to give you the brief introduction about myself and about my exposure and experience related to the Cisco ACI. And then I will take you to the content which we used to deliver with the students for the Cisco ACI. And then maybe we can pick one topic and discuss around so that you can understand like what is my delivery mode. Okay. Okay. So starting with the my introduction. So I am Manish. I am having around 18, 19 years of experience in Cisco networking. Related to the ACI, it's around 6 years of experience, and it's related to the migration from legacy to the Cisco ACI. So as you guys know that Cisco ACI is nothing but a data center fabric, right? So migration from the legacy data center to the ACI build data center. Okay, build up whole ACI fabric, how we can configure the leaf and spine switches, epic and all. Okay, so the whole build actually. And then troubleshooting and the operation as well. Okay, so I have started working on the ACI from the Cisco ACI multipod, Cisco ACI multi-site, and now I am working on the Cisco ACI, which is not a multipod or multi-site, but you can say two diverse data center with the ACI fabric actually, and then we have a legacy as well. Okay, so this is about my experience related to the ACI. But apart from the ACI, I have been working on the routing and switching and all. Okay. And for the when it comes to the training part, I have delivered multiple corporate training and multiple retail training. So I used to deliver trainings on the Cisco ACI and Cisco Wireless as a freelancer. Okay. So I work with NetMania as a freelancer and used to deliver training whenever there is a requirement come for any ACI or wireless training. I used to give that. Okay, so I'm going to share my screen and going to discuss about the contents. Feel free to interrupt me if you have any questions on that. Basically, when you log into the netminion.net, I'm trying to give you the path like where you can see the content, where you can see the curriculum. Okay, so आप netminion.net पे login करोगे पहले. Okay, you can click on the courses. Here you can see all type of courses which we used to offer to the students. Okay, so you have to scroll down and come to the Cisco ACI. ACI वाले पे आपको क्लिक करना होगा. There are some couple of videos recorded for just get to know like how we deliver that content, and go all the way and click on the download complete syllabus now. यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा. तो यहाँ पे आपको दिखेगा द सिस्को एसीआई एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर क्लास फ्रॉम द बिगिनर टू एडवांस लेवल. एंड व्हाई वी आर सेइंग दैट फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल. मतलब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बिगिनर टू एडवांस लेवल? बिकॉज व्हाट आई यूज टू डू इज आई स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, आई स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड देन टेक यू टू द एडवांस लेवल. सो अगर मैं ये बोलूं कि ये कोर्स हमारा कंप्लीटली जो है 300/620 पे बेस्ड है, विच इज द एसीआई एग्जाम फ्रॉम द सिस्को, सिर्फ उसके कोर्स करिकुलम पे बेस्ड है, तो दिस विल बी अनफेयर. क्योंकि मेरा जो डिलीवरी मोड होता है वो ये होता है कि आई ऑलवेज इंक्लूड एग्जाम्पल्स फ्रॉम द प्रोडक्शन सिनारियोज. Whatever the problems I face in day to day life or I had faced in day to day life,
आई इंक्लूड दोज। ओके, सो मेरा डिस्कशन ऐसा नहीं होता कि मैंने क्या किया, कंटेंट डाउनलोड किया सिस्को से या नेटमीनियर की वेबसाइट से, और फिर कंटेंट पे मैं थियरी डिस्कस कर लिया और थोड़े लैब करा लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता। मेरा क्या होता है कि मैं प्रोडक्शन सिनेरियो पे बात करता हूँ कि भाई ठीक है, ये तुम्हारा पुराना डेटा सेंटर था, दिस वाज योर ओल्ड डेटा सेंटर, मे बी नेक्सस 7 के, 5 के एंड 2 के, और अब तुम्हारा एसीआई बिल्ड डेटा सेंटर है जो कि बेस्ड ऑन है नेक्सस 9 के। अब तुम्हें वर्कलोड माइग्रेशन करनी है, कंप्यूट वाले बंदे बोल रहे हैं भाई मुझे वर्कलोड माइग्रेट करना है, प्लीज प्रिपेयर द माइग्रेशन फ्रॉम योर साइड, आई विल डू फ्रॉम माई साइड। सो एज ए इंजीनियर हाउ यू कैन डू दैट, ये बड़ा ही पॉपुलर, मतलब मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं, यू कैन गो एंड स्टेट वे अप्लाई टू योर प्रोडक्शन सिनेरियो, कोई फर्क नहीं लगेगा तुम्हें। जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, जो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो इश्यूज आते हैं, जो ट्रबल शूटिंग आपको करनी पड़ती है, exactly you can replicate to your production scenarios when you are going to do the same thing in your production scenarios. Okay, तो इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है कि हाँ यार हम यहाँ पे लैब कर रहे हैं तो कोई बात नहीं जी, हमारा लैब है कोई बात नहीं, ये तो प्रोडक्शन में तो अलग होगा, ऐसा कुछ अलग नहीं होगा। डोंट फील इन दैट वे, एग्जैक्टली सेम सिनारियो में डिस्कस करूंगा जो कि जनरली होता है हर कंपनी में। मैं आपको कुछ ऐसी बारीकियां बताऊंगा, आई एम गोइंग टू टेल यू सम स्पेसिफिक about the ACI data center, which only a person who is having a vast experience in Cisco ACI can tell you. तो बुक में नहीं मिलेगा आपको, वो किसी पीडीएफ से डाउनलोड करके आपको नहीं मिलेगा, वो आपको एक्सपीरियंस ही बताएगा। और इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल, यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, और तभी कंपनी उसके लिए पे करती है। तो ये हमारा जो कंटेंट है, हमने इसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया है कि कोई बंदा हो जिसको एसीआई के बारे में बिल्कुल पता ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ही कैन एनरोल इनटू आवर कोर्स एंड ही कैन गो फ्रॉम दी स्क्रैच टू एडवांस लेवल। जब भी हम ये बात करते हैं तो हमारा ये ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली वी आर कन्फाइंड टू द कोर्स कंटेंट, और कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर ये बता दो तो हम बोलेंगे नहीं नहीं भाई ये हमारे कंटेंट में नहीं है, हम तो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। मैं स्टूडेंट के, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि बंदा अपनी क्वेरी लेके आए और कुछ उससे भी मुझे नॉलेज ट्रांसफर हो। भाई मैं तो कर ही रहा हूँ नॉलेज ट्रांसफर, लेकिन कुछ नई चीज पूछ के आया जो मैंने भी फेस नहीं किया हो, सो डेट विल बी एक्चुअली अ वैल्यू एड फॉर मी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अबाउट व्हाट इज एसीआई ओवरव्यू। भाई हम 15-20 साल से ट्रेडिशनल डेटा सेंटर पे काम कर रहे थे, हमने कैटालिस्ट 6500 पे काम किया, हमने नेक्सस 9 के, सॉरी नेक्सस 7 के, 5 के एंड 2 के पे काम किया, फेक्स पे काम किया, हमने सर्वर कनेक्टिविटी करी, हमने माइग्रेशन करी, हमने बीपीसी बनाई, हमने बीडीसी बनाई। तो फिर एसीआई की क्या जरूरत पड़ गई, और इतना ऐसा क्या प्रोडक्ट है इसमें, ऐसे क्या फीचर्स हैं एसीआई में कि एकदम से ये इट्स बिकम इंडस्ट्री हॉट, इवन इट इज बाईपासिंग दी VMware NSX which is the offering from the VMware. So we start with the Cisco ACI overview, and then we go to the ACI architecture and the building blocks. भाई क्या building blocks है ACI का? नेक्सस 9 के प्लेटफॉर्म है, तो क्या नेक्सस 9 के का प्लेटफॉर्म जो है NXOX में काम करता है, या उसके लिए कोई अलग ओएस होता है? उसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है, उसकी केबलिंग कैसे होती है, उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे होती है? अगर कनेक्टिविटी अपनी आ रही है, फैब्रिक अपनी आ रहा है, तो अब क्या करें? वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं एसीआई आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स में। फिर हम थोड़ा सा बात करते हैं हार्डवेयर में, बहुत ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि हार्डवेयर का कुछ भी, अगर मैं 3 दिन क्लास ले लूं हार्डवेयर पे, आप भूल जाओगे। लेकिन जो मेन चीज है दैट इज गोइंग टू बी लेवरेज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन नेटवर्क, वो मैं डिस्कस करता हूं कि भाई क्या फर्क है। अगर आपको पता होगा तो एसीआई इज बेसिकली build of Nexus 9K switches. Some models are categorized as a leaf switches, and some models are categorized as a spine switches. And then there is one more component which is like a management plane that is known as a EPIC.
एप्लीकेशन पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोलर। सो ये तीनों कंपोनेंट कैसे आपस में बात करते हैं, कैसे डिस्कवरी एपिक डिस्कवर कैसे करता है बिफोर इशूइंग अ कमांड टू देम। ओके, तो हम हार्डवेयर के बारे में जितना हमें जानकारी चाहिए वो मैं बताता हूँ, दैट नॉलेज ट्रांसफर आई यूज टू डू। और फैब्रिक डिस्कवरी होती कैसे है, क्या प्रोटोकॉल यूज होता है, वो सब बात करते हैं। एंड देन आई टॉक अबाउट द अंडरले एंड ओवरले। कौन कौन से अंडरले प्रोटोकॉल्स हैं और कौन कौन से ओवरले प्रोटोकॉल्स हैं। अगर हम आईएसआईएस यूज करते हैं तो आईएसआईएस का क्या रोल है, हम बीजीपी यूज करते हैं तो क्या रोल है बीजीपी का, हम बीजीपी यूज क्यों कर रहे हैं, और कितनी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होगी जो कि हमारा बीजीपी इनेबल्ड हो जाए। हमारी एंड पॉइंट डिस्कवरी फैब्रिक में होती कैसे है? क्योंकि एंड पॉइंट डिस्कवरी या सर्वर डिस्कवरी या मैक लर्निंग एंड आर्प लर्निंग इज टोटली डिफरेंट कंपेयर टू द ट्रेडिशनल नेटवर्किंग। यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से काम होता है। The whole fabric is very advanced compared to the traditional networking, and that is the advantage is bringing to the customer. That's why customers are spending so much on the ACI. Guys, I'm telling you, ACI is the future. ये धीरे धीरे सब हट जाएगा। जितना भी आप देख रहे हो ना, कहीं कहीं पे जो नेक्सस बने बचे हुए हैं वो सब हट जाएगा। अभी नेक्सस पे वही लोग बचे हुए अटके हुए हैं जिनके पास बजट नहीं है या छोटे कस्टमर्स हैं। मे बी they are thinking the advantage they will get from the ACI will overweigh their budget. सो सिर्फ वही कस्टमर है, बाकी सारे कस्टमर दे विल गो टू द एसीआई। फिर हम धीरे धीरे बात करना शुरू करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाना शुरू करेंगे हम धीरे धीरे। तब हम बात करेंगे कि भाई एक्सेस पॉलिसी क्या है, व्हाट इज एक्सेस पॉलिसी, व्हाट इज फैब्रिक पॉलिसी, हाउ वी कैन कस्टमाइज दैट। और जब हम एक्सेस पॉलिसी की बात कर लेंगे तब हम जाएंगे लॉजिकल कंस्ट्रक्ट में। सो लॉजिकल कंस्ट्रक्ट का यहां मतलब है नेटवर्किंग कंस्ट्रक्ट। क्योंकि भाई कोई भी फिजिकल इंटरफेस है, यू कैन टच दैट। लॉजिकल का क्या मतलब है, आप ट्रेडिशनल नेटवर्क में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाते हो, यहां कैसे बनेगा, यहाँ गेटवे कैसे डिफाइन होगा। यहाँ तो बहुत सारी चीजें एडवांस हैं जो एसीआई क्लेम करता है, तो हम लेवरेज कैसे करेंगे उस फीचर्स को टू डिलीवर दी और कैटर द नीड ऑफ द कस्टमर। पैकेट फ्लो की बात करेंगे हम कि एक सर्वर हमने एक लिप पे लगा दिया, एक सर्वर हमने दूसरी लिप पे लगा दिया, और उनके बीच कम्युनिकेशन होगी कैसे। एसटीपी का क्या रोल होगा, वहां पे एसटीपी यूज भी होता है कि नहीं होता है, वो हम बात करेंगे पैकेट फ्लो के अंदर। कोड्स और रिलीज के भी बारे में बात करेंगे कि क्या कोड चल रहा है, क्या लेटेस्ट। हालांकि ये पोर्शन जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्को एसीआई कोड्स एंड रिलीजेस है वो मैं ज्यादा डिस्कस करता हूँ अपग्रेड के में। जब हम एसीआई अपग्रेड करना सीखते हैं तो मैं सिखाता हूँ कि भाई हम एसीआई अपग्रेड, क्योंकि अपग्रेड ऑफ एनी डिवाइस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टू अ नेटवर्किंग पर्सन। कोई भी डिवाइस है, आप कैसे अपग्रेड करोगे, कैसे बैकअप लोगे कॉन्फ़िगरेशन का, एक वर्जन से दूसरे वर्जन जा रहे हो तो क्या आपको करना पड़ेगा, एसीआई में कैसे होगा, और डाउन टाइम कैसे प्रिवेंट करोगे। क्योंकि भाई तो डेटा सेंटर फैब्रिक है, इसमें तो डाउन टाइम प्ले मेजर रोल, अदरवाइज आपको अप्रूवल ही नहीं मिलेगा बिजनेस से, आप अपग्रेड कैसे करोगे। तो वो सारी बात हम करते हैं। ACI इंटीग्रेशन, द vCenter वर्चुअलाइजेशन कंट्रोल, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन एंड VMware फंडामेंटल। अभी इस पे बात करते हैं, उससे पहले हम नीचे आ जाते हैं। लेट मी स्क्रॉल बिट डाउन। तो जब मैं बात कर रहा था नेटवर्किंग कंस्ट्रक्ट्स की या लॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स की, तो हम प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं, ब्रिज डोमेन बनाते हैं, सबनेट डिफाइन करते हैं। तो वो हम सारा करते हैं, जितने भी हमारे नेटवर्किंग कंस्ट्रक्ट है, जैसे आपके VRF होते हैं, आपके सबनेट्स होते हैं, आपका गेटवे डिफाइन करना है। ओके, आप यहाँ पे ईपीजी भी बनाते हो, आप यहाँ एप्लीकेशन प्रोफाइल भी बनाते हो, वो सारा आप लॉजिकल कंस्ट्रक्ट के अंदर बनाते हो। तो कहाँ पे जाना है, कैसे बनाना है, वो सब हम सीखते हैं। फिर हम बात करते हैं एसीआई लेयर 2 आउट। अब हमें एसीआई से, मान लो हमारा ट्रेडिशनल डेटा सेंटर है और वहां पे दो वीलन चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब डेटा सेंटर होगा तो मल्टीपल वीलेंस होंगे,
लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमें ड्यू टू सम रीजन मे बी कि हमने नया डेटा सेंटर बिल्ड किया एसीआई का, हमने नए जो वर्कलोड नए आ रहे हैं उसको तो एसीआई पे कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन अभी हमारा माइग्रेशन हुआ नहीं है। तो लेगेसी डेटा सेंटर में जो हमारे वर्कलोड्स हैं वो एसीआई बिल्ड डेटा सेंटर के वर्कलोड से कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? और अगर हमें रिक्वायरमेंट है कि वो लेयर 2 से बात करें, मे बी कि भाई हमारा जो पुराना डेटा सेंटर है उसके अंदर हमारा गेटवे बना हुआ है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इन दोनों का with respect to the layer 2 out and with respect to the layer 3 out? वो हम बात करते हैं ACI लेयर 2 आउट में। जब हमें VLAN एक्सटेंशन करनी है तो हमें ACI लेयर 2 की बात करेंगे। अब हमें राउटिंग भी एक्सटेंड करनी है, मे बी कि हमारा अभी इंटरनेट और MPLS ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में कनेक्टेड है, तो मेरे ये वर्कलोड है और कोई बंदा, कोई ब्रांच लोकेशन का बंदा या रिमोट लोकेशन का बंदा जो MPLS से आ रहा है वो उसको एक्सेस करना चाहता है, तो हमें L3 के बारे में भी बात करनी पड़ेगी ना, राउटिंग भी तो करनी पड़ेगी। जब तक हमारे डेटा सेंटर का सबनेट एडवर्टाइज नहीं होगा ओवर MPLS या ओवर इंटरनेट, तब तक कम्युनिकेशन कैसे होगा ओवर L3? सो वो हम बात करते हैं एक्सटर्नल नेटवर्किंग, कनेक्शन, L3 आउट और नेटवर्क। तो ये सारे इसके सब कंपोनेंट हैं। बेसिकली हाउ द फैब्रिक बिहेव्स विद द राउटिंग आउटसाइड, that is the L3 out, and L2 out is layer 2 extension. How you can going to, how you are going to extend? Okay, let me see the chat. Somebody sent some message. No, border leaf is not different from, okay, somebody put a question, just a minute guys, before I proceed with the content. So border leaf is not different from the normal leaf. So क्या होता है कि भाई आपके डेटा सेंटर में लेट्स से आपने 15 या 20 लीफ स्विच लगा ली बेस्ड ऑन दी पोर्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि भाई हमारे ज्यादातर तो कंप्यूट कनेक्ट होते हैं, सर्वर कनेक्ट होने हैं, बेरोमीटर सर्वर, हाइपरवाइजर, ये सारे कनेक्ट होने हैं, है ना, क्योंकि एप्लीकेशन तो इन सर्वर पे ही आएगा। तो आप क्या करते हैं कि आप एक क्लासिफिकेशन बना देते हैं अपने नेटवर्क को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए। आप क्या करते हैं कि आप 4-5 लीफ को कंप्यूट लीफ का नाम दे देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, एक दो लीफ को आप डीएमजी बना देते हैं, भाई कोई डीएमजी सर्वर है जो बाहर से एक्सेस होगा, है ना, फायरवॉल के पीछे है, तो आप डीएमजी सर्वर को बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक दो सर्वर को आप एक दो लीफ को आप सर्विस लीफ बना देते हैं। सर्विस लीफ का मतलब क्या है, आपका लोड बैलेंसर लग गया, आपका WLC लग गया, आपके बॉर्डर वो फायरवॉल लग गए, क्योंकि वो सर्विसेज दे रहे हैं। लोड बैलेंसर क्या है भाई, एप्लीकेशन बिहाइंड द लोड बैलेंसर दे सर्व द क्लाइंट, सो वो लोड बैलेंसिंग सर्विस हो गई। वायर WLC क्या है, वायरलेस लैन कंट्रोलर दैट सर्व द वायरलेस क्लाइंट, तो वो सर्विसेज हो गई। तो सर्विस लीफ आपने कुछ कैटेगराइज कर दिया और कुछ लीफ को आपने डेजिग्नेट कर दिया एज ए बॉर्डर लीफ, सो दैट दे कैन, ओके गॉट नेमिंग, या इट्स जस्ट अ नेमिंग कन्वेंशन, एग्जैक्टली, इट्स जस्ट अ नेमिंग कन्वेंशन, इट हैज नो स्पेसिफिक फीचर, इट्स नो स्पेशल हार्डवेयर। इसका फायदा ये होता है कि जब ट्रबल शूटिंग आप करते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है। अगर आपको कोई राउट्स बाहर से नहीं मिल रहे हैं तो आपको किसी पर्टिकुलर लीफ में जाके लॉगिन करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये आइडेंटिफाई कर रखा है कि भाई मेरा लीफ 101 एंड लीफ 102 विल बी बॉर्डर लीफ that is responsible for all external connectivity, maybe your DM VPN router, your MPLS router, your internet router, all are connected on this border leaf. तो जस्ट नेमिंग कन्वेंशन। अच्छा, अब आप जब लेयर 3 आउट करते हैं, L3 आउट करते हैं एसीआई में, तो आपके साथ कई सारे चैलेंज आते हैं। हो सकता है कि भाई अगला दूसरे VRF में हो सकता है कि जो कुछ आपके वर्कलोड 8 टेनेंट में हो, कुछ इसमें हो, तो इंटर VRF या राउट लीकिंग बिटवीन द VRF and inter tenant communication, या route leaking between tenant communication, how that is going to be happen, because tenant is totally a separate और लॉजिकल आइसोलेटर। आपने जो एक टेनेंट में कोई चीज बनाई वो दूसरा टेनेंट देख भी नहीं पाएगा, तो उनके बीच कम्युनिकेशन करानी है तो कैसे करोगे? मान लो आपके पास एनवायरनमेंट में डीएमजी है और आपने सोचा, यू आर ए नेटवर्क आर्किटेक्ट एंड यू थॉट दैट आई विल क्रिएट बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट,
सो आपने बोला कि भाई मैं तो एक डीएमजी टेनेंट बना दूंगा, एक यूएटी टेनेंट बना दूंगा, एक प्रॉड टेनेंट बना दूंगा। और मेरे जो प्रॉड टेनेंट के अंदर प्रॉड सर्वर रहेंगे, डीएमजी में डीएमजी सर्वर रहेंगे, यूएटी में मेरे डेवलपमेंट सर्वर सारे रहेंगे। जो बंदे वहां पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे वो यूएटी टेनेंट में काम करेंगे। लेकिन अगर फॉर सम रीजन प्रॉड वाला बंदा डीएमजी वाले बंदे से बात करना चाहता है, तो आपको सम कॉन्फ़िगरेशन यू नीड टू डू एज ए नेटवर्क इंजीनियर। दैट इज वेयर दिस इंटर टेनेंट कम्युनिकेशन कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है। अच्छा, एसीआई के अंदर एक बात और है। यहाँ पे क्या होता है कि आप ईपीजी भी बनाते हो। अब ईपीजी मैं बात करूंगा जब हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, तो बात करेंगे क्या ईपीजी क्या बला बला है। अब यहाँ पे ईपीजी का मतलब ये समझ लो कि एंड पॉइंट ग्रुप। यहाँ पे क्या है कि सर्वर का एक कलेक्शन, या एक तरह से कह लो कि एक लॉजिकल कंटेनर बना देते हैं। अब जैसे मान लो आपके एप्लीकेशन के 3 टीयर हैं, वेब टीयर, ऐप टीयर एंड डेटाबेस टीयर। तो आपने 3 ईपीजी बना दी, लेकिन ईपीजी टू ईपीजी कम्युनिकेशन एट द डेटा प्लेन लेयर ओनली हैपेंस व्हेन यू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एसीआई में सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जब तक, जैसे तुमने नेक्सस में देखा होगा कि कोई भी फीचर है अगर आप यूज करना चाहते हो, तो आपको पहले वो फीचर इनेबल करनी पड़ेगी। जैसे आपने पोर्ट चैनल बनाना चाहा, तो पोर्ट चैनल वाली फीचर इनेबल होगी। आप एलएसीपी बनाना यूज करना चाहते हो, तो एलएसीपी पहले इनेबल करनी पड़ेगी, फीचर एलएसीपी। अगर वो नहीं करोगे तो वो काम ही नहीं करेगा, कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे एसीआई में क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए फीचर तो आपको नहीं इनेबल करनी है, लेकिन वो कम्युनिकेशन नहीं होगा एट द डेटा प्लेन लेयर जब तक आप सर्टेन फीचर उसके अंदर जा करके इनेबल नहीं करो। कंट्रोल प्लेन पे 100 आईपी राउट चलाओगे तो तुम्हें दिखेगा राउट दिख रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, क्योंकि डेटा प्लेन पे आपने वो फीचर इनेबल ही नहीं की है। तो वो यहाँ पे काफी रेस्ट्रिक्टेड बना रखा है इन्होंने, क्योंकि ये डेटा सेंटर फैब्रिक है। दे डोंट वांट सम एक्सटर्नल एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन टू हैपन व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी यूज, या कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो जाए। तो ईपीजी वगैरह के बारे में बात करते हैं। फिर इंट्रा ईपीजी आइसोलेशन कैसे होती है, माइक्रो सेगमेंटेशन क्या होता है, कि भाई आपने क्या किया कि ठीक है भाई आपने ईपीजी बनाया वेब, लेकिन वेब सर्वर, वेब ईपीजी के अंदर आपके 10 सर्वर हैं। अब 5 तो आपके क्वारंटाइन है, एंटीवायरस है, 5 नहीं है। उनके बीच भी आप आइसोलेशन करना चाहते हो, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि जो मेरा क्वारंटाइंड है ऑलरेडी, वो मेरे नॉन क्वारंटाइन को जाके इम्पैक्ट कर दे। तो वो मैक्रो सेगमेंटेशन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। सिक्योरिटी फीचर्स, यहाँ एसीआई में सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा वो है। हर चीज में जब तक आप उस फीचर को इनेबल नहीं करते, वो चीज ब्लॉक है या डिसेबल्ड है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, भाई मान लो मैंने 2 बंदे हैं मेरे टीम में, या कंप्यूटर का कोई बंदा है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम कंप्यूटर वाले बंदे को बोलेंगे भाई ठीक है, तुम अपने सर्वर्स जो मेरे एसीआई पे लगे हुए हैं, तुम उनका देखना चाहते हो कि इंटरफेस अप है या डाउन है क्या है, तो मैं तुमको एक रीड ओनली प्रिविलेज दे सकता हूँ फॉर दिस टेनेंट ओनली। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल बहुत ज्यादा है इसके अंदर। किसको क्या रोल देना है, किसको रीड देनी है, किसको राइट देनी है, ये तो हर जगह है। बट उसके अलावा भी टेनेंट बेस में कितना एक्सेस देना चाहते हो, मतलब यू कैन डिफाइन एट द ग्रेनुलर लेवल। सिर्फ इंटरफेस देखना है तो वो भी डिफाइन आप कर सकते हो। तो ये आरबैक बहुत ज्यादा डिफाइंड है एसीआई में। फिर आपका आता है मॉनिटरिंग, लॉगिंग एंड फॉल्ट मैनेजमेंट। तो मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, भाई हमारा मेजर फॉल्ट आ गया, क्रिटिकल फॉल्ट आ गया, वार्निंग ही है, किसी ने कुछ चेंज कर दिया, कैसे पता चलेगा क्या चेंज हो गया। चलते चलते नेटवर्क डाउन हो गया, कैसे पता करेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं। वो सब इसके अंदर मैं बताऊंगा, फॉल्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे एसीआई के फॉल्ट को समझते हैं, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ऑपरेशंस में तो बहुत ज्यादा काम आता है फॉल्ट मैनेजमेंट। उसके अलावा, मतलब ये तो मेजर टॉपिक है, बट बहुत सारे छोटे टॉपिक यहाँ पे लिखे नहीं है। जैसे कि अपग्रेड है, एसीआई अपग्रेड कैसे होगा, बैकअप कैसे लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन का,
रिस्टोर कैसे करते हैं? हमने कोई चेंज है, हमें करना है, हमने सैटरडे को चेंज किया, मंडे को पता चला भाई सब कुछ डाउन है, चल भी नहीं रहा है। अब हमारे पास एक बैकअप है, हमें रिस्टोर कैसे करना है या रोल बैक कैसे करना है, इमीडिएटली रोल बैक कैसे करना है। रिस्टोर तो बड़ी बात है, तो वो कैसे करेंगे? सिस्को वाला बंदा है, आपने बंदर को बुलाए कि भाई ये नहीं चल रहा, मैंने देख लिया, बेसिक ट्रबल शूटिंग कर ली है, अब समझ में नहीं आ रहा, आई नीड योर हेल्प। सिस्को वाला बोलेगा भैया टेक सपोर्ट दो। कैसे लेंगे एसीआई में टेक सपोर्ट? और टेक सपोर्ट एक चीज है और ऑन डिमांड टेक सपोर्ट एक अलग चीज है एसीआई में। कंपेयर टू ट्रेडिशनल, वहां पे तो सिर्फ एक ही चीज है, टेक सपोर्ट। टेबल शूटिंग कैसे करेंगे? टेबल शूटिंग एसीआई की बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे कमांड चलते नहीं है जो हमारे ट्रेडिशनल में चलते थे, थोड़े थोड़े कमांड वहां से चलते हैं। लीप पे अलग लेवल का चलता है, एपिक पे अलग लेवल का चलता है। तो क्या कमांड है, कैसे देखें? इवन छोटी सी चीज है, आपको देखना है कि इंटरफेस है, किस पोर्ट चैनल का पार्ट है, किस वीपीसी का पार्ट है, उसके लिए आपको किसी ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और जो चीज डिफिकल्ट होती है भाई, उसी की डिमांड होती है, सीधी सी बात है। तो अभी एसीआई हॉट है, तो इट्स गुड टाइम टू लर्न दिस टेक्नोलॉजी एंड मेक योर सेल्फ skilled on this so that your demand can be maintained. So I am not going to take a pause here. Let me know if you have any questions on the content part. We will be performing the lab for all these scenarios, or So lab part, you can talk to the NetMinion. They will guide you on that. okay? Because I think actually lab is like important, right? So just going through the. No, no, definitely I agree with you. Lab is, equally important as well as the concept part. तो उसके लिए आप नेटमिनियन से बात कर लीजिएगा, वो बता देंगे कि लैब पर क्या है, कैसे है और कैसे एक्सेस देते हैं, वो सारी चीजें आपको बता देंगे वो। तो ये जो हम लोग टॉपिक जो ये डिस्कस करेंगे, ये मतलब सिर्फ टॉपिक डिस्कशन होगा या साथ साथ में हम लोग लैब भी नहीं करते नहीं, रहेंगे? साथ साथ लैब भी होगा। ये तो मैंने अभी सिर्फ आपको कंटेंट बताया है, मैं अभी उसी पे जाने वाला था अच्छा अच्छा। कि इसके अंदर क्या होगा, कि मैं क्या कैसे मैं डिलीवर करता हूँ, कि जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसका सारा हम्म। लैब एक बार मैं करके दिखाऊंगा वहां पे। जैसे मान लो एक सर्वर, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सर्वर है, ओके। उसको आप वीपीसी में कनेक्ट करना चाहते हो एसीआई में, तो कैसे करोगे? कैसे आपका अंडरले पॉलिसी और ओवरले पॉलिसी बनेगा, वो मैं पहले आपको करके बताऊंगा। अब उसके अंदर दो चीज है भाई, एक हो सकता है कि आपकी सिग्नल कनेक्टिविटी हो फ्रॉम द सर्वर टुवर्ड्स द लीफ स्विच, एक हो सकता है कि आपको हम्म पोर्ट चैनल बना रहे हो, और एक हो सकता है आपको वर्चुअल पोर्ट चैनल बना रहे हो। तो जो डिफिकल्ट पार्ट है मैं दिखा देता हूं, फिर मैं बोलता हूं बंदे तुम लोग करो। वो बंदा उसी टाइम पे, क्लास के टाइम पे करता है, और जो डाउट आता है मैं देयर एंड देयर इटसेल्फ आई क्लोज दैट डाउट। तो ये जो ठीक है। लैब जो होगा, वो हम्म। एक्चुअली मतलब कि हम लोग को लैब एक्सेस मिलेगा डिवाइसेस का, या मतलब जीएनएस वगैरह जैसे मतलब सिमुलेशन वगैरह पे करना पड़ेगा? आप सर देखो, मैं बताऊं इरफान, आप टोटली इस चीज के लिए ना नेटमिनियन से बात कर लो, दे विल हेल्प यू ऑन दैट, अच्छा। क्योंकि वो क्योंकि बेसिकली वही मेंटेन वो करते हैं। एक्चुअली हम्म। एक थोड़ा वो एक इम्पोर्टेंट था, नहीं मतलब नहीं, कि उसको मैं सोचा। मैं आई अंडरस्टैंड दैट, आई टोटली अप्रिशिएट योर कंसर्न। आप बिल्कुल उस चीज के लिए ही बात कर लो उनसे, जितना भी डिटेल आपको बात करनी है उससे बात कर लो, वो आपको सारे ऑप्शन दे देंगे। तो आप उस पे, वहां पे आपको डाउट क्लियर हो जाएगी। तो और ऐसे आप मतलब कि पिछले वाले जो भी आपने सेशन लिया हुआ, तो वो आप उसका कुछ तो बता सकते हैं कि कैसे, मतलब कि कैसे होता था? देखो, मैं इरफान, आई वर्क विथ मेनी इंस्टीट्यूट, ओके, टू बी ऑनेस्ट। तो हम्म मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ काम करता हूँ, तो मैं डिपेंड करता है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे है, उस हिसाब से हम कर लेते हैं। नेटमिनियन के साथ भी हमने कई तरह से, हमने जो इनके वो आते हैं, सिमुलेटर आते हैं, उस पे किया हुआ है हमने काम, ठीक है। तो हम वो हम्म क्या करते हैं, ओवा लेकर के अपने सर्वर पे, हमारा हाई एंड सर्वर, उस पर डिप्लॉय कर देते हैं, और उसके बाद हम जो है हम्म एक ट्रेनर को एक पोर्शन दे देते हैं, और बाकी पोर्शन हम जितने कैंडिडेट्स होते हैं उनको दे देते हैं। तो ऑब्वियसली देखो, एक चीज तो अच्छा। मैं साफ बोलूंगा, हार्डवेयर
नहीं मिलता है, क्योंकि हार्डवेयर इज ये गोइंग हार्डवेयर तो एक्चुअली हाँ वो वो तो बहुत ज्यादा काफी ज्यादा कॉस्ट है। एक्सपेंसिव हो हाँ जाता है। बहुत एक्सपेंसिव है, तुम्हें भी पता है, अगर आप इंडस्ट्री में हो तो आपको पता है कि एक लीप भी लेंगे, एक स्पाइन लेंगे और एक पिक लेंगे तो वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द हम्म। सिमुलेशन। जो सिस्को का स्टैंडर्ड सिमुलेशन। सिमुलेटर, हाँ हाँ। सिस्को का जो स्टैंडर्ड सिमुलेशन है उस पर काम करते ओके। और ये एक्चुअली जो सिमुलेशन ये रन होगा वो मतलब जो नेट मिनियन के एक्चुअली सर्वर्स पे रन होगा। वी हैव टू जस्ट मतलब हम लोग को एक्चुअली रिमोटली एक्सेस करके उसके बाद उसके ऊपर सारे सिनेरियोस प्रैक्टिस करने हैं, राइट? हैं। तो इस बार करेक्ट करेक्ट। मी इफ आई एम रॉन्ग। Yeah, right, हाँ Irfan. जी। And we will be gonna talk about it, okay, after this class. ओके। ठीक है, तो हमारा ये मतलब मैं कह रहा था कि मैं जो इम्पोर्टेंट सारे लैब है वो साथ में कराता भी हूँ, करता भी हूँ। छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल लैब हैं, वो बंदों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो साथ में करना चाहते हैं या एज ए होमवर्क। कई बार बंदे ये भी कहते हैं कि सर कोई बात नहीं, आप आगे चलो, हम लोग ये कर लेंगे, और फिर वो करके आते हैं और उनकी कोई डाउट्स होती है तो फिर हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो ज्यादातर मेरी मेरी क्या मतलब इंटेंट होती है कि बंदा थोड़ा खुद से भी एफर्ट डाले, ठीक है, अपनी क्वेरीज लेके आए और डिस्कशन मोड में ज्यादा हो, क्लास इंटरेक्टिव हो, है ना। इंस्टेड ऑफ कि मैं बोले जा रहा हूँ उसके बाद मैंने बोला भाई ठीक है हो गया जी, और वो बोला हाँ जी हो गया, और बाद में ही फील लाइक कि यार मुझे तो अभी ज्यादा पता नहीं चला, और ऐसे। तो थोड़ा सा ये है कि मैं भी मेहनत करूंगा, आपको भी करना पड़ेगा साथ में मेरे, ठीक है। तो ये मेरा डिलीवरी कंटेंट है। जनरली मैं इंग्लिश में डिलीवर करता हूँ, लेकिन किसी बंदे को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, आई विल रिफर द टर्मिनोलॉजी इन इंग्लिश एंड स्टेटमेंट इन हिंदी। तो वही इंग्लिश में मतलब मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर इसके अलावा हमें कोई टॉपिक डिस्कशन करनी है तो एक तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने से ही एक टॉपिक ले लेता हूँ, है ना। मे बी कि अगर आप यू आर नॉट अवेयर अबाउट द एसीआई, तो आप क्या टॉपिक पूछोगे। तो एक बड़ा ही हॉट टॉपिक है कि भाई एसीआई हेल्प कैसे करता है एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में, क्योंकि इसका तो नाम है ना, सिस्को एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका तो नाम ही एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कैसे करता है। तो देखो, पहले एक चैलेंज आता था, जब भी कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय होता था तो प्रॉब्लम ये आती थी कि नेटवर्किंग वाले बंदे अलग हैं, सर्वर वाले बंदे अलग हैं, एप्लीकेशन वाले बंदे अलग हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन जो है हमेशा 3 टीयर में होता है। वेब, जो कि आपका फ्रंट लेयर होता है, ऐप, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है, और डेटाबेस, जो भी आपका डेटा आप स्टोर कर रहे हो, तो डेटाबेस में तो सारा क्वेरीज वगैरह आपका डेटाबेस से रन होता है। तो 3 टीयर तो होते ही होते हैं सारे एप्लीकेशंस में, ओके। तो पहले क्या चैलेंज आता था कि भाई आपने एप्लीकेशन कस्टमर को लेट से डिप्लॉय करना है फॉर सम बिजनेस, ही हैड टू रन सम बिजनेस एंड ही नीड एप्लीकेशन। So he will approach to the compute guy will build the server, but then he need a connectivity, he need a network, okay। नेटवर्क वाला बंदा बोलेगा भाई आपको किस विलन में रखना है। अब विलन है, सबनेट है, गेटवे है, या कंप्यूट वाला बंदा नहीं समझता। कंप्यूट वाला बंदा बोलेगा मेरा ये सर्वर ऐप है, ये डीबी है और ये वेब है, वो नेटवर्क वाला बंदा नहीं चलेगा। तो एक काइंड ऑफ एक कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो जाती थी। एसीआई में क्या होता है कि आप दो तरीके से काम कर सकते हो। एक नेटवर्क सेंट्रिक अप्रोच, जिसके अंदर आपका एसीआई जो है पूरा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में काम करेगा, ट्रेडिशनल बन नहीं जाएगा बल्कि स्ट्रक्चर में काम करेगा। जैसे कि आपका वीलन है, गेटवे है, ब्रॉडकास्ट डोमेन है, कैसे हैंडल होता है, मल्टीकास्ट कैसे हैंडल होता है, वो सारा उस मोर और लेस इट्स वर्क इन दी सेम कॉन्सेप्ट। although the underlay part, the working part will be entirely different, but थोड़ा उसी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है। दूसरा पार्ट होता है आपका एप्लीकेशन सेंट्रिक वाला मोड। एप्लीकेशन सेंट्रिक मोड में अगर आप चाहो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि लेट्स से, मैं पेंट खोल करके ये टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूं। अब जैसे ये है, अब मैंने बोला कि भाई मेरा एक एप्लीकेशन डिप्लॉय होना है,
और हम जानते हैं कि एक एप्लीकेशन के 3 टियर होते हैं, वेब ऐप एंड डीबी। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता था, हम पहले क्या करते थे, ठीक है, थोड़ा हमारा फाइट होता था कंप्यूटर से, बट अल्टीमेटली अगर हम कोई रेफरेंस मान लेते थे, यार कोई रेफरेंस सर्वर तो दो, तो वो रेफरेंस सर्वर बता देते थे, हम वो रेफरेंस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन देख करके कर लेते थे। लेकिन अगर कोई न्यू डिप्लॉयमेंट है तो चैलेंज आएगा, कैसे करें, है ना? दूसरी बात, आपकी राउटिंग एक चैलेंज आती थी। एसीआई में क्या होता है कि ये वेब है, पहले देखो, बिफोर आई डिस्कस अबाउट दिस है, तो पहले क्या करते थे हम, वेब के लिए लेट से हमने एक बना दिया VLAN 20 और इसको एक सबनेट दे दिया 10.1.20/24। ऐप को हमने क्या किया, बोल दिया भाई एक काम करते हैं, ऐप को हम VLAN 30 में कर लेते हैं फॉर डिफरेंशिएशन। 10.1.30.0/24। ठीक है, इसी तरह से हमने डीबी के लिए ले लिया। मैंने सिंपल सोचा कि भाई ऐसे कर लेते हैं, तीनों टियर को अलग अलग विलन में डाल देते हैं और हमारा कोर स्विच इंटर विलन राउटिंग करेगा ही, और फिर हम सबनेट को राउटर के थ्रू एडवर्टाइज कर देंगे। तो 10.1.40.0/24। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम एक ये है कि जब भी हमें एप्लीकेशन रन करना है, एक तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, है ना, पूरा हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, है ना, और पहली बार तो बहुत चैलेंज आएगा एप्लीकेशन डिप्लॉय करने में। इसमें एक और चैलेंज ये भी है कि जो वेब सर्वर्स होंगे उसको इसी सबनेट पे रहना होगा, जो ऐप सर्वर होंगे उसको इसी सबनेट में रहना होगा, जो डेटाबेस सर्वर होंगे उसको इसी सबनेट में रहना होगा। यानी कि इट इज डिफाइंड बाय द सबनेट बाउंड्री। नेटवर्क इज डिफाइंड बाय द सबनेट बाउंड्री, दैट इज द ट्रेडिशनल वर्क। एसीआई में इन्होंने बोला कि नहीं यार, हमें नेटवर्क ऐसा बनाना है जो कि एप्लीकेशन सेंट्रिक हो, हम सबनेट बाउंड्री से नहीं बल्कि टियर से डिफाइन हो, एप्लीकेशन टियर से डिफाइन हो। उससे हमें फायदा होगा कि हमें सबनेट के बारे में तामझाम नहीं करना पड़ेगा, और अभी हमारा कंप्यूट का बंदा भी इस पे काम कर लेगा, क्योंकि वो अपना टियर तो समझता ही है। तो हमने क्या कहा कि भाई देखो, वेब वेब टियर है, तो वेब टियर में जो मेरा एक सर्वर है, वो हो सकता है कि वो 10.1.20.20 में हो, और दूसरा जो सर्वर है वो हो सकता है 10.1.30.20। अब यहाँ पे देख रहे हो कि एक टियर है, लेकिन यहाँ पे सबनेट बाउंड्री नहीं है, क्योंकि हमारा वेब सर्वर जो है, जो हमारा फ्रंट एंड सर्वर होता है एप्लीकेशन का, जो जिसपे हिट आता है यूजर से, उसमें एक सर्वर तो 220.20 है, दूसरे में 30.20 है। यानी ऑल्दो दे आर इन डिफरेंट सबनेट, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द वेब टियर। इसी तरह से ऐप में भी हो सकता है, इसी तरह से डेटाबेस में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वर विल बी नॉट बेस्ड ऑन द सबनेट बाउंड्री, बट विल बी बेस्ड ऑन द सर्वर। segregation, how segregation happen, okay, segregation, okay, before I hit that, okay, अभी मैं एक चीज और बताता हूं, उसके बाद उस पे जाऊंगा। अब क्या है, तुमने देखा होगा कि जब भी आप एप्लीकेशन टियर की बात करो, तो वो फायरवॉल से कंट्रोल्ड होता है, एक्सेस कंट्रोल होती है उसकी, है ना। तो इससे एसीआई ने बोला, मतलब सिस्को ने बोला कि भाई हम एक काम करेंगे टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस। हम जब तक एक कॉन्ट्रैक्ट ना बने, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना करके इनके इनके बीच में कम्युनिकेशन अलाउ नहीं करेंगे, तब तक ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब देखो, पहले क्या होता था कि भाई सबनेट है, अगर एक ही सबनेट का बंदा है तो वो आपस में बात कर लेगा। नहीं, मैं बताता हूँ, लेयर 3 फॉरवर्डिंग फायरवॉल वो अलग चीज है, मैं बताऊंगा अभी। तो पहले क्या होता था कि अब यहाँ पे एक और कैच है। ठीक है, चलो एक बार एक काम करते हैं, इस सबनेट को हटा देते हैं।
यहाँ पे एक हमारा ऐप में एक बंदा है 10, एक सर्वर है, आई मीन टू से 10.1.20.21। अब तुम बोलोगे मनीष भाई ये 10.1.20.20 है, ये 10.1.20.21 है, स्टिल दे कैन बी टॉक टू ईच अदर, राइट, बिकॉज दे आर इन सेम सबनेट। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जब तक कि तुम इस वेब टीयर को ऐप टीयर के लिए ओपन नहीं करोगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाओगे, तब तक वो आपस में बात नहीं करेंगे। ये एसीआई की ब्यूटी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अपना जो कंस्ट्रक्ट है एप्लीकेशन टीयर के हिसाब से वेब ऐप एंड डीबी बना करके आप उसको बीच में कॉन्टेक्ट बना करके उसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, यानी उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। अब ऐसा, हाँ, कॉन्टेक्ट कैन बी लाइक जोन सब, या यू कैन से दैट, यस। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे जो रूल बनती है फायरवॉल में क्या होता है, सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट। यहाँ पे ऐसे बात नहीं होती। यहाँ पे एप्लीकेशन टीयर के टर्म में बात होती है, उनके लैंग्वेज में बात होती है। यानी कि HTTPS ऐप 4043, यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि आप, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 10.1.20.20 वेब का पार्ट है और 10.1.20.20 ऐप का पार्ट है, तो आप तो रूल बना ही नहीं पाओगे आईपी बेस्ड। तो यहाँ आप सर्विस बेस्ड रूल बनाते हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो आप कंपेयर कह सकते हो, आप कह सकते हो कि लाइक ए जोन ऑफ फायरवॉल, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। तो ईपीजी टू ईपीजी आपस में तभी बात करेंगे, ये बेसिकली ईपीजी ही है। तो अब एक्चुअली मेरे को क्या है कि इसको समझाने के लिए मुझे ये टर्म बोलना ही पड़ेगा, आई हैव नो अदर चॉइस। सो इफ यू आर नॉट अवेयर सो फॉरगिव मी अबाउट दैट। बट ईपीजी टू ईपीजी बात तभी होगी जब आप कॉन्टेक्ट बनाओगे, ये सिस्को का मैंडेट है। ओके, अब ऐसा सेपरेशन हो कैसे पाया कि भाई आपने जो है सबनेट बाउंड्री को ही हटा दिया और आपने बेसिकली एप्लीकेशन के हिसाब से बाउंड्री बना दी। वो इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिसी बनती है दैट इज बेसिकली डीकपल्ड फ्रॉम द हार्डवेयर। भाई पहले आप, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जैसे ये राउटर है, ठीक, ये राउटर है, और इस राउटर को मैंने क्या किया, एक सिंपल सा, बहुत पहले ऐसे ही चलता था एक्चुअली, एक राउटर को मैंने सिंपल स्विच से कनेक्ट कर दिया जो कि लेयर 2 स्विच है। ओके, और मैंने यहाँ इस इंटरफेस पे मैंने एक सबनेट डिफाइन कर दी, लेट्स से 10.1.20.1/24। तो ये 10.1.20.1/24 विल बिकम द गेटवे ऑफ द सर्वर विच आर कनेक्टेड ऑन दिस स्विच। यहाँ पे जो भी होस्ट होंगे या सर्वर होंगे या एंड यूजर होंगे, उनका ये गेटवे बन जाए। लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो कि दिस गेटवे इज टाइड टू द हार्डवेयर, दिस फिजिकल इंटरफेस। अगर ये फिजिकल इंटरफेस माल फंक्शन हो गया या बैड हो गया या करप्टेड हो गया या डाउन हो गया, तो मेरा गेटवे डाउन हो जाएगा। एसीआई में ऐसा नहीं है। एसीआई में गेटवे इज फ्लोटिंग, वो गेटवे यहाँ भी अवेलेबल है, वो गेटवे यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ गेटवे यहाँ भी अवेलेबल है। तो यानी कि अगर 10.1.20.20 को मैं यहाँ लेके माइग्रेट किया, तो मुझे ये नहीं सोचना कि भैया मेरा वहां गेटवे है कि नहीं है, पहले ये तो चेक कर लू। नहीं, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सो दैट इज द सम ऑफ द थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे आपका जो पॉलिसीज है that is decoupled from the hardware, and we will talk more about when we will start in the class. तो यहाँ पे जैसे मैं तुमको एक छोटा सा दिखाता हूँ, थोड़ा स्लो है। एक्चुअली एपिक स्लो होता ही है क्योंकि ये इतना ज्यादा डेटाबेस होता है इसका कि थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स करता है। आप किसी भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाओगे तो आपको देखोगे कि एपिक, is it cost savvy, like what cost savvy, can you re-elaborate your question in terms of the deployment or what?
हाँ, देखो हॉट इसलिए है, देखो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे पॉलिसी, अब देखो ये एपिक का डैशबोर्ड है, ओके, दिस इज हाउ द डैशबोर्ड ऑफ द एपिक लुक लाइक, ओके। अब यहाँ पे देखो फैब्रिक एक टैब है, अगर आप फैब्रिक पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको दो ऑप्शन आएंगे, फैब्रिक पॉलिसी एंड एक्सेस पॉलिसी, ओके। अब ये एक्सेस पॉलिसी जो है, दिस इज गोइंग टू टॉक अबाउट दी फिजिकल कनेक्टिविटी। भाई एक सर्वर आप कनेक्ट कर रहे हो लीप पे, या लोड बैलेंसर कनेक्ट कर रहे हो लीप पे, या फायरवॉल कनेक्ट कर रहे हो लीप पे, तो जो भी फिजिकल कनेक्टिविटी है उसके अराउंड जो पॉलिसी आप बनाओगे वो आप एक्सेस पॉलिसी के अंदर बनाओगे, देख रहे हो। जबकि आपको नेटवर्किंग बनाना तो आप टेनेंट के अंदर जाओगे, टेनेंट इज योर लॉजिकल कंटेनर। एक कंटेनर अज्यूम करो कि एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने कुछ सामान रख दिया हो, तो टेनेंट के अंदर आप जाकर के आप वीआरएफ, ब्रिज डोमेन, ईपीजी, एप्लीकेशन प्रोफाइल वगैरह सब बनाते हैं ना। लेट्स से अगर मैं थोड़ा सा इस पे टाइम लूं टेस्ट करके, और इसको भी वीआरएफ नेम अभी मैं छोड़ देता हूं, सबमिट क्लिक करता हूं, तो जो मेरा ये टेस्ट चैनल बना और इसको मैंने एक्सपेंड किया, तो आप देखोगे कि मुझे ये ऑप्शन देगा कि भाई ब्रिज डोमेन बनाओ, एप्लीकेशन प्रोफाइल बनाओ, ईपीजी बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, लेयर 3 आउट बनाओ, लेयर 2 आउट बनाओ, देख रहे हो ये सारी चीजें नेटवर्किंग बेसिकली। मैं जो भी ये L3 आउट, L2 ब्रिज डोमेन, वीआरपी सब बता रहा हूँ, नेटवर्किंग ही तो है। तो ये देखो टोटली सेपरेट है, और टेनेंट जो है तुम्हारा ओवरले नेटवर्किंग है। लेकिन जब तुम फैब्रिक के अंदर जा करके और एक्सेस पॉलिसी के अंदर जा करके आप डिफाइन करते हो कि भाई पोर्ट की स्पीड क्या होगी जिस पर सर्वर कनेक्ट हो रहा है, क्या पोर्ट लिसन करेगा, क्या मेरा पीयर लिसन करेगा सीडीपी पे या एलएलडीपी पे, ऑटो नेगोशिएट रखना है कि भैया स्पीड हार्डकोर करनी है, वो सारी चीजें आप एक्सेस पॉलिसी के अंदर डिफाइन करते हो। तो यहां जो है ये ड्रॉबैक नहीं है कि मेरा अगर ये गेटवे डाउन हो गया तो मेरा पूरी कनेक्टिविटी डाउन, क्योंकि मेरा गेटवे इज नॉट टाइड टू द हार्डवेयर, गेटवे इज काइंड ऑफ फ्लोटिंग, इट इज अप्लाइड टू एंटायर फैब्रिक। कहीं भी वीएम माइग्रेट करके ले जाएगा बंदा, कंप्यूट वाला बंदा कहीं भी अपना वीएम माइग्रेट करके ले जाएगा, उसको 10.1.20.1 मिल जाएगा, तो उसको ये सोचना नहीं है। तो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट बहुत फास्ट है, हाई परफॉर्मेंस है, हाई थ्रूपुट है। थ्रूपुट हाई क्यों, क्या है, क्योंकि भाई इसका जो ये कनेक्टिविटी है लीफ और स्पाइन की, ये 100 गिग है, ये 100 गिग है। ये 10 गिग हो सकता है, 25 गिग हो सकता है, 1 गिग हो सकता है, लेकिन ये हमेशा 100 गिग होता है। ऑल्दो सॉरी, ऑल्दो सिस्को ने 40 गिग का भी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ये हमेशा 100 गिग होता है। और यहाँ पे एसटीपी नहीं चलता, यहाँ ये नहीं है कि ये ब्लॉक हो गया, ये फॉरवर्डिंग हो गया और ऐसे, ये सारे अपलिंग लोड बैलेंसिंग में काम करते हैं। और भी बहुत सारी फीचर्स हैं, मतलब अभी इतने लिमिटेड डेमो टाइम में मैं नहीं बता सकता। सो दीज आर द रीजन, दैट्स व्हाई एसीआई इज हॉट। ओके, सो I think I can wrap up now. So, Irfan, if you have any question, you can shoot now. Just I have one question here, sir. What time you are going to teach this? टाइम As का on- तो देखो ऐसा है, मैं सुबह भी कर सकता हूँ अर्ली मॉर्निंग, और रात को Okay. भी कर सकता हूँ, On ठीक है, weekends. वीकेंड्स ओनली, यस, बिकॉज आई एम Okay. वर्किंग प्रोफेशनल, सो आई डोंट हैव टाइम इन वर्किंग डेज। Okay. तो अभी ये डिसाइड करेंगे नेट में उन्होंने। नहीं, Okay. Irfan, it would be 8:30 to 10:30 p.m. Okay. So I hope it was On already Saturday discussed. and Sunday. Right, Saturday and Sunday. Because in India, you are aware, the weekends are Saturday and Sunday. You are from India or no? No, I'm not from India. Yeah. It's 8:30 to 8:30 to 10:30 p.m. Sorry, Okay. who is this, Irfan or Ismail? Ismail. I'm Ismail. Okay. So Yeah, Ismail, 8:30 p.m. to 8:30 p.m. to onwards. 10:30 p.m. So the same time at the time what we started today, is it suitable Okay. to you? It's difficult this time, 3 o'clock here. So 3 p.m. yeah. Okay. So it's all right. Let's see. We will I will see. decide We and will let you know. Yeah, we will see. Okay. Okay. Thank you.
Okay, guys. So if we are done with the question, we can wrap up, and we'll expect you to join our class. Then we'll discuss more in detail how the things works, and you can talk and redirect your question regarding the lab and recording and all those things to the NetMinion. They can handle that. Yeah, thank you, Manish, for your Thanks, time.